Hello friends, so today we are going to start with question number 23 and this question of your worksheet is, I can say, a very good question. It includes all the logical things, it includes certain extraordinary transactions that we are going to study. So without wasting any time, let's just start studying question number 23. The first thing is prepare Sri Marfatia whatever's account, rather journal entries, that is okay. हमारी journal entry का title होगा journal entries in the books of Sri Marfatia. Then Sri Sarla Marfatia, whatever. 1st August, started business by bringing in cash 30,000, debtors 20,000, creditors 10,000 and stock of 10,000. Very easy and basic transaction that we are having right now. So let's just start doing it. August 1st, cash account debit 30,000, debtors account debit 20,000, stock account debit 10,000, to creditors account 10,000, to capital account 50,000. Is it completely clear? It is just like the transactions that we already did before, right? So let's move ahead without wasting any time. Expense of 1,000 was incurred in puja and ice cream at the time of inauguration. तो यहाँ पे पूजा expense या ice cream account debit ऐसा नहीं लिखना है. At the time of inauguration word है तो what we are going to write? Inauguration expense account debit to cash account, right? So my first entry, inauguration expense account debit to cash account 1,000 and 1,000. Fine. Chalo. Then just a moment. Fine. Chalo. फिर next. Borrowed a loan of 40,000 from Saroj Ben at 12% interest. Saroj Ben के पास से हमने 12% interest पे loan ली, right? We have borrowed a loan from Saroj Ben at 12% interest of rupees 40,000, right? So my entry would be cash account debit to 12% Saroj Ben's loan account 40,000 and 40,000. Is it completely clear? Completely all right. चलो फिर आगे बढ़े. Deposited 40,000 with the bank and opened an account. हमने कैश डिपॉजिट करी बैंक में और अकाउंट ओपन करा. So my entry over here would be, the date was 2nd, right? So 2nd date पे बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ, करेक्ट. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एज कैश इज गोइंग आउट फ्रॉम मी. मेरे पास से कैश जाके बैंक अकाउंट में जा रही है, राइट. सो बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा और कैश जा रही है तो क्रेडिट होगा. इज इट कम्प्लीटली फाइन? चलो फिर आगे बढ़े. Purchase furniture of rupees 10,000 from Gopal Furniture Mart. Gopal Furniture Mart name is given, meaning thereby it is a credit transaction और मैंने furniture buy करा है. So what will be my journal entry over here? Furniture account debit, as it is my asset, to Gopal Furniture Mart account 10,000 and 10,000. Completely all right. चलो फिर क्या दिया हुआ है नेक्स्ट. Purchase table, chairs and fans from Royal and Company for 2,500 and paid through check. टेबल, चेयर्स एंड फैंस हमने बाय करे हैं, करेक्ट. बट दिस ऑल थिंग्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ फर्नीचर ओनली. सो माई एंट्री ओवर हियर विल बी फर्नीचर अकाउंट डेबिट. और हमने यहाँ क्या दिया हुआ है? पेड थ्रू चेक, मानी हमने चेक से पेमेंट किया हुआ है ऑलरेडी. सो माई एंट्री ओवर हियर वुड बी
furniture account debit to bank account 2500 and 2500 as we have paid it through check. Then next, sold goods costing rupees 15, fourth one is there still left. Purchase goods of rupees 30,000 from Mallika distributors on credit at 10% trade discount. हमने Mallika distributors के पास से credit पे goods buy करे of rupees 30,000. So my entry over here, first of all, before doing the entry, I will be doing what? Working note. 30,000 minus 10% trade discount, 3,000 comes to 27,000. So my entry over here would be purchase account debit to Mallika distributors account, and we never ever record trade discount, right? So it will be 27,000 and 27,000, easy, correct? Chalo, फिर next, sold goods costing rupees 15,000 which was purchased from Mallika distributors. मानी Mallika distributors के पास से हमने जो परचेस करा था उसमें से ही हमने कुछ 15,000 के गुड्स बेचे. किसको बेचे? संगीता को. आफ्टर एडिंग 20% प्रॉफिट, हमने प्रॉफिट भी अपना ऐड करा, सीधी बात है, प्रॉफिट ऐड करा और हमने संगीता को गुड्स बेचे एट 10% ट्रेड डिस्काउंट. सो व्हाट विल बी माई वर्किंग नोट? फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी गुड ट्रांजेक्शन, वर्किंग नोट पे अच्छे से ध्यान देना है यहाँ पे हमें. सो ओवर हियर गुड्स कुछ 15,000 के थे, करेक्ट, प्लस 20% प्रॉफिट 3,000 comes to 18,000, correct, minus 10% trade discount 1,800 comes to 16,200, and definitely we never record this. So over here my entry would be what? Sangeeta's account debit, as she has not paid anything yet, to sales account 16,200 and 16,200. Completely all right till now. Is it completely clear? Chalo, then next, purchased, just a minute, purchase goods of rupees 50,000 from Shaili at 10% trade discount and 10% cash discount, gave a check of half amount. हमने शैली से गुड्स बाय करे 50,000 के एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% कैश डिस्काउंट एंड गेव अ चेक ऑफ हाफ अमाउंट, राइट. अब हमें इतना क्लियर है कि कैश डिस्काउंट कब मिलता है? जब हम पैसे पे करें या हमें इमीडिएट पेमेंट, स्पॉट पेमेंट मैंने आपको सिखाया था, राइट. सो हियर इन दिस केस हमने सिर्फ हाफ अमाउंट का पेमेंट करा है, तो कहने से मेरे को सिर्फ हाफ अमाउंट के ऊपर ही डिस्काउंट मिलेगा, करेक्ट. इज इट कंप्लीटली क्लियर? सो हियर माय एंट्री वुड बी लाइक दिस, एंड बिफोर डूइंग एनी एंट्री वी आर सपोज टू डू व्हाट? वी आर सपोज टू डू द वर्किंग नोट विदाउट एनी फेल. सो गुड्स आर ऑफ रुपीज 50,000 minus 10% trade discount, that comes to 5,000, 45,000. Then there are two parts again, 22,500 and 22,500. This 22,500 I have already paid, जिसके ऊपर मुझे कैश डिस्काउंट मिलने वाला है, that is 2250, that comes to 20,250, and ये अभी भी शैली को पे करना बाकी है. completely clear? कैन आई से ट्रेड डिस्काउंट तो वी नेवर रिकॉर्ड. सो ओवर हियर माई एंट्री वुड बी लाइक दिस: परचेज अकाउंट डेबिट 45,000 टू, हमने चेक दिया है कि कैश दिया, क्या दिया हुआ है? चेक दिया हुआ है, राइट. सो परचेज अकाउंट डेबिट टू, पैसे कितने गए? चेक कितने का दिया हमने? जस्ट चेक इट आउट. चेक कितने का दिया हमने चेक दिया 20,250 का. सो टू बैंक अकाउंट 20,250. डिस्काउंट कितना मिला मेरे को?
2250 का डिस्काउंट मिला, राइट? सो माई एंट्री वुड बी to discount received account. You may write only discount also, but to get the better clarity I always prefer to write full thing. So discount received account, right? 2 शैली को अभी भी पैसे देना बाकी है. 2 शैलीज अकाउंट 22,500. याद करो मैंने सिखाया था, अगर रिसीवेबल्स हो तो डेबिट करते हैं और पेएबल्स हो तो क्रेडिट करते हैं, राइट? तो यहाँ पे हमें शैली को अभी भी पे करना बाकी है. कंप्लीटली क्लियर? चलो देन लेट्स मूव अहेड. संगीता returned goods of ₹540 of the goods sold to her, which were returned to Mallika distributor. This is amazing transaction, something extraordinary that have come to our way. क्या बोला गया है? हमने मल्लिका के पास से गुड्स बाय करके संगीता को बेचे थे, जिसमें से 540 रुपीज़ के गुड्स संगीता ने हमें रिटर्न कर दिए और वही गुड्स हमने जाके मल्लिका को रिटर्न करे. अब अच्छे से समझना जो चीज़ मैं समझाना चाह रही हूँ, एकदम कंप्लीट फोकस यहाँ पे. मैं अगर ऐसा बोलूँ कि भाई मैंने किसी को लेट से 100 रुपये के गुड्स किसी के पास से बाय करे, 100 रुपीज़ के गुड्स मैंने किसी के पास से बाय करे, उसके ऊपर मैंने पूरे 900 रुपये का प्रॉफिट लगा के 1000 रुपीज़ में वो गुड्स किसी को बेचे. 100 में मैंने गुड्स बाय करे हैं, 1000 में मैंने वो गुड्स बेच दिए, करेक्ट? नाउ द पर्सन टू हुम आई हैव सोल्ड द गुड्स, ही इज़ गिविंग इट बैक टू मी. उसको सही नहीं लगा या फ्री सैम्पल्स के हिसाब से नहीं लगा या सैम्पल के हिसाब से नहीं लगा, वॉट एवर द थिंग वॉज, बट ही सेंड इट बैक टू मी. उसने मुझे सेंड बैक किया, गुड्स मेरे को वापस दे दिए. मेरे को गुड्स वापस आए, करेक्ट? मैंने उसको 1000 में बेचे थे, उसने मुझे वापस दे दिए 1000 रुपीज़ के. अब मैं सोच रही हूँ ऐसा कि मैं ये गुड्स रख के अब क्या करूँगी, चलो मैं भी वापस ही दे देती हूँ मैंने जिसके पास से परचेस करे थे उसको. तो आई एम गोइंग टू दैट पर्सन एंड टेलिंग हिम टू टेक बैक द गुड्स. क्या मैं उसको ये परचेस करा हुआ रिटर्न करूँगी तो वो मुझे 1000 रुपीज़ वापस देगा या 100 रुपये वापस देगा? Will that person is going to give me 1000 rupees back or 100 rupees back? Definitely 100 rupees back. वो क्या बोलेगा कि भाई मैंने बेचा ही आपको 100 रुपये में है तो मैं क्यों 1000 रुपीज़ वापस करूँ, करेक्ट? 100 रुपीज़ ही वापस करेंगे, कंप्लीटली फाइन. और मैंने जिसको बेचा था मैं उसको कितने पैसे वापस करूँगी? 1000 रुपीज़ पूरे ना, क्योंकि मैंने 1000 में बेचा था. कंप्लीटली ऑल राइट, कंप्लीटली क्लियर. ये एक लॉजिक समझ में आया कि भाई मैं किसी के पास से कितना भी प्रॉफिट चढ़ा के किसी को बेच रही हूँ, बट इफ़ आई एम परचेज रिटर्न, आई एम डूइंग द परचेज रिटर्न थिंग, मैं उसको वापस दे रही हूँ तो वो तो जितने प्राइस में मैंने बाय करा है डेफिनेटली उस पर ही वर्कआउट होने वाला है. नाउ इन दिस केस मल्लिका डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास से हमने बाय करा था, फिर हमने शैली या वॉटेवर क्या नाम है संगीता को बेच दिया था, दैट इज़ ओके, पर हमने प्रॉफिट चढ़ा के बेचा था, राइट? और नाउ शी इज़ गिविंग मी बैक 540 रुपीज़ का गुड्स, राइट? सो हियर माई एंट्री वुड बी समथिंग लाइक दिस. अच्छे से समझना. एक तो 7th का ए पार्ट इज़ वेरी इजी, सेल्स रिटर्न हुआ है. सो सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट to Sangeeta's account 540 and 540. But B part is something which is very interesting. मल्लिका डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास से हमने गुड्स बाय करे थे. नाउ जस्ट लुक एट द ट्रांजेक्शन्स. मल्लिका के पास से कितने के गुड्स बाय करे थे, ये रहा. एज आई हैव नॉट यूज्ड अ डिफरेंट कलर पेन ओवर हियर, यू मे थिंक के मैम कहाँ है ये. सो चलो फाइन. सो 27,000 के गुड्स हुए, करेक्ट? समझना अच्छे से. और यहाँ पे देखें हमने जो संगीता को बेचा था उसकी मैं बात करूँ, क्या ना, इसे 15,000 के गुड्स थे, ये वाले 15,000 के गुड्स थे जो मैंने उसको 16,200 में बेचे. अच्छे से ध्यान देना, सब कुछ समझ में आएगा. 15,000 के गुड्स थे मेरे लिए जो मैंने उसको 16,200 में बेचे, करेक्ट? सो यहाँ पे ध्यान अच्छे से. अगर कॉस्ट प्राइस, चलो वेट अ मिनट और सिंपल बनाते हैं उसको. अगर सेल्स प्राइस इज 16,200 देन कैन आई से उसकी कॉस्ट प्राइस इज 15,000. कहाँ से पता चला मैम? ये रहा, अभी अभी देखा हमने.
फिफ्थ वाला ट्रांजेक्शन देखो, अगर 16,200 सेलिंग प्राइस है तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, 15,000 है, कंप्लीटली फाइन, समझना अच्छे से। 16,200 इज द सेल्स प्राइस, देन कॉस्ट प्राइस इज 15,000, देन अगर 540 के गुड्स रिटर्न हो रहे हैं तो कॉस्ट प्राइस वुड भी कितना, समझ में आ रहा है? आई एम रिपीटिंग इट अगेन। 16,200 में मैंने बेचा जिसकी कॉस्ट प्राइस थी 15,000, सेलिंग प्राइस 16,200 हो तो वो कॉस्ट प्राइस होती है 15,000, तो वो जब मुझे सेल्स रिटर्न हो रहा है 540 का तो उस पर मेरी कॉस्ट प्राइस कितनी, दैट वे आई एम सपोज टू डू। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 15,000 into 540 upon 16,200, so that will come 15,000 into 540 divided by 16,200, 500, right? So this will be the answer. So my journal entry over here would be Mallika distributors account debit to purchase returns account as goods are going out, right, of rupees 500. See, entry में कोई problem नहीं है, entry is very easy to do, but the only problem over here in this particular sum is the amount. तो हमें amount find करना आना चाहिए, right? Entry is never a problem, it is very easy. चलो, then let's move ahead. Sold goods of rupees 20,000 purchased from Shaili after adding 25% profit to Shefali at 10% trade discount and 10% cash discount, received the half amount in cash. हमने शैली के पास से जो गुड्स बाय करे थे उसमें से 20,000 गुड्स हमने 20,000 की गुड्स हमने किसको बेचे, शेफाली को बेचे 25% प्रॉफिट ऐड करके and 10% trade discount, 10% cash discount as she paid half amount in cash, right? So let's do it quickly. Correct. Goods of rupees 20,000, correct, plus 25% profit add करेंगे, so 5,000, 25,000 minus 10% trade discount, that is 2,500, 22,500, out of which she paid half amount to us, so 22,500 divided by 2, that is 11,250, 11,250 ये शेफाली के पास से अभी लेना बाकी है एंड यहाँ पे उसने पे कर दिया है, सो माइनस 10% कैश डिस्काउंट, that is 1125, so minus 10%, that comes to 10,125, right? और उसने हमें चेक दिया है कि कैश दिया है, she has paid us cash, so my entry over here would be, as we never record this, so Shefali's account debit 11,250, cash account debit 10,125, discount allowed account debit 1125, to sales account 22,500. Completely clear, completely easy to understand. Let's move ahead. Sold goods to Sujata for 15,000 on credit and paid carriage of rupees 200 in cash on her behalf. उसके behalf पे हमने भरा है, हमारा खर्चा नहीं है, हमने तो सुजाता के behalf पे ये carriage के पैसे भरे, right? So my entry over here would be Sujata's account debit 15,200 to sales account 15,000
टू कैश अकाउंट 200, completely clear. चलो then let's move ahead. Sold goods of rupees 20,000 after adding 30% profit to sawmill at 10% trade discount and 10% cash discount. If the payment is made within 10 days, if the payment is made within 10 days, अभी पेमेंट हुआ नहीं है, यहाँ पे कंडीशन हमने रखी कि भाई अगर आप 10 दिन के अंदर अंदर पे कर दोगे तो हम आपको 10% का कैश डिस्काउंट देंगे. सो हियर इन दिस केस 20,000 की गुड्स 30% प्रॉफिट ऐड करके बेचे हैं हमने. चलो सो the working will be like this. Goods of rupees 20,000 is there plus profit of 30%. 30% ही बोला है ना, let me just check it out once again. Yes, 30% profit. 6,000, 26,000 minus trade discount 10%, 2,600. सो 23,400 और अभी कुछ भी हुआ नहीं है. ही हैज़ नॉट पेड एनीथिंग टू अस येट. सो वी विल बी राइटिंग द एंट्री लाइक दिस. sawmills account debit to sales account 23,400, 23,400, completely clear. चलो then let's move ahead. पेड वेजेस ऑफ 300 फॉर वाइट वॉशिंग द शॉप. शॉप का वाइट वॉश करना था, उसके लिए पेमेंट करा है हमने. वी मे राइट पेंटिंग एक्सपेंस, वी मे राइट मेंटेनेंस एक्सपेंस, एनीथिंग इज फाइन. सो अकाउंट डेबिट to cash account 300 and 300. चलो then paid life insurance premium of 250 and life insurance paid fire insurance premium of 250 and life insurance premium of 300 by check. मतलब एक ऑफिस का खर्चा हुआ, एक पर्सनल एक्सपेंस हुआ. सो फायर इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट 250, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 300 टू बैंक अकाउंट. लेट्स डू इट. Fire insurance premium account debit 250, drawings account debit 300 to bank account 550. completely clear. चलो फिर I hope it is completely legible enough, fair enough. चलो then next. Gave cash of 50 and goods of 150 to orphanage. Orphanage में हमने charity करी, right? कैश भी भरी और goods भी दिए. So my entry over here would be donation or charity, any word you may use. Donation account debit 200 to cash account 50 to purchase account as goods are going out 150. easy, completely clear. Then let's move ahead. 14th शेफाली रिटर्न गुड्स ऑफ 675. शेफाली ने यानी कि डेट 8th पे हमने शेफाली को गुड्स बेचे थे यहाँ पे, वो उसने रिटर्न करे ऑफ रुपीज़ कितने. गुड्स रिटर्न कहाँ गए, 675 के उसने रिटर्न करे थे. एज ऑफ नाउ इट इज़ वेरी इजी कि उसने भाई हमने उसको जो बेचे थे वो उसने हमें रिटर्न कर दिए, वहाँ तक इट इज़ फाइन. पर अगर वो मुझे रिटर्न उसने जो करा वो मैं किसी जहाँ से भी बाय करा तो उसको वापस रिटर्न करने चाहती यानी कि परचेज रिटर्न होता, देन इट वुड हैव बीन समथिंग डिफरेंट कैलकुलेशन. लेट्स सी, अगर आगे आएगा तो विल सी टू इट. सो हियर माई एंट्री वुड बी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट to Shefali's account 675 and 675. completely fine. चलो फिर on the occasion of celebration of the Independence Day paid cash of 250 for refreshment expense at the Traders Association. Traders Association generally traders का get together
वी एडवर्टीज अवर प्रोडक्ट्स एंड समथिंग लाइक दैट, उस तरीके का होता है. वी मे राइट रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस, वी मे राइट इवन एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस ऑल्सो कि हमने भी एडवर्टीजमेंट पर्पस के लिए ये किया. बट हियर वी आर गोइंग टू डेफिनेटली राइट फॉर रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ₹250. रिफ्रेशमेंट expense account debit to cash account 250 and 250 completely fine. चलो then goods returned by Shefali were returned to Shaili. दिस इज़ वॉट आई वॉज टॉकिंग अबाउट. शेफाली ने जो गुड्स हमें रिटर्न करे, दैट इज सेल्स रिटर्न हुआ, वो हमने किसके पास से बाय करे थे? शैली के पास से बाय करे थे. तो वो हमने जाके शैली को रिटर्न कर दिए. लेट्स सी, हमने ये वर्किंग नोट कहाँ पे करा था? 8th नंबर का वर्किंग नोट था. ये देखो ध्यान से, इस हियर इट इज़. इफ यू कैन सी ओवर हियर 20,000 के गुड्स थे जिसको मैंने 22,500 में बेचा था. नाउ इट हैज़ बिन रिटर्न्ड टू अस विच वी हैव रिटर्न्ड टू शैली. सो हियर द वर्किंग नोट विल बी समथिंग लाइक दिस. वेरी अमेजिंग ट्रांजेक्शन. 20 सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस आई वुड से 22,500 सेल्स प्राइस थी, तब मेरा कॉस्ट प्राइस वॉज 20,000, करेक्ट. तो अब जब सेलिंग प्राइस 675 है तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना होगा? जस्ट डू इट. 20,000 इंटू 675 डिवाइडेड बाय 22,500, इट वुड बी 600. सो हियर माय जर्नल एंट्री वुड बी परचेज रिटर्न हुआ, ये करेक्ट. सो शैलीज अकाउंट डेबिट, Shaily's account debit to purchase return account 600 and 600. That you need to be very careful कि अपनी ट्रांजेक्शन कहाँ करा था. कहीं उलझ जाओगे तो इट विल बी आउट ऑफ योर लीग, देन मार्क्स भूल ही जाने पड़ेंगे. सो यहाँ पे हमने ये वाला ट्रांजेक्शन 8th वाला ट्रांजेक्शन देखना है, क्योंकि हमने 8th वाले ट्रांजेक्शन में ही शैली को बेचा था, रादर शैली के पास से बाय करा हुआ शेफाली को बेचा था, करेक्ट. सो हियर यू कैन सी द होल वर्किंग नोट ऑन योर स्क्रीन, राइट. वर्किंग नोट सही होगा ना तो यू विल बी थ्रू टू इट, आपको इजीली समझ में आ जाएगा. पर वर्किंग नोट अगर आपने सही से नहीं करी होगी देन डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी अ ट्रबलसम थिंग फॉर यू. चलो देन लेट्स मूव अहेड. नेक्स्ट, withdraw cash of 1,500 from bank for the office expense. For office expense we haven't done the office expense yet. office expense करने के लिए हमने बैंक से पैसे withdraw करे. so my entry would be cash account debit to bank account 600 and 600. I suppose 600 ही था, कहाँ गया? नहीं 1,500 है. चलो फाइन. so it will be 1,500 and 1,500. चलो then next, withdraw cash 16th is done, 17th is done, okay. 18th received goods of 300 as free samples. हमने goods receive करे हैं as a free sample, that's all, और कुछ नहीं हुआ है. so my entry over here would be no, rather non-economic transaction, correct. चलो then next, goods received as free samples were given for free to customers for advertisement. फ्री में मिले, फ्री में दे दिए, डन, बात खत्म हो गई, कुछ नहीं करना है. सो अगेन नॉन इकोनॉमिक. देन नेक्स्ट, परचेज द मशीन ऑफ 5,150 एज वेजेस फॉर इंस्टॉलिंग द मशीन. परचेज किया हमने मशीन 5,000 का, पेड 150 एज वेजेस फॉर इंस्टॉलिंग द मशीन. याद करो, असेट बाय करते टाइम जो भी खर्चा हो वो असेट की वैल्यू में ऐड करना है, ऐसा कुछ हमने सीखा है, राइट. सो हियर माय एंट्री वुड बी मशीन अकाउंट डेबिट 5,150 टू कैश अकाउंट 5,150, करेक्ट. चलो फिर नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटेड गुड्स ऑफ ₹200 एज फ्री सैम्पल्स. हमने फ्री सैम्पल्स के तौर पे गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करे. गुड्स आर गोइंग आउट अदर देन सेल्स फॉर एडवर्टीजमेंट पर्पस, आई कैन से. सो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट
to purchase account. How much it is? 200. So 200 and 200. चलो then next. रिसीव 300 फॉर ब्रोकरेज एंड कमीशन. ब्रोकरेज और कमीशन हमारी इनकम हुई, वो पैसे हमें मिले. सो माई एंट्री वुड बी कैश अकाउंट डेबिट टू brokerage and commission account. How much it is? It is 300, so it will be 300 and 300. Chalo then next. Received personal dividend of rupees 700 which was deposited in the business bank account. पर्सनल डिविडेंड मिला है और वो मैंने बिजनेस बैंक अकाउंट में डाला. कहना इसे पर्सनल जो मेरी इनकम थी वो बिजनेस में डाल रही हूँ मैं. तो इट इज़ व्हाट? एनीथिंग दैट द ओनर इज ब्रिंगिंग इन टू स्टार्ट और टू रन द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल. सो इट इज़ व्हाट? इट इज़ कैपिटल, राइट? सो हियर इन दिस केस माई एंट्री वुड बी बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक अकाउंट में डाला है इसलिए, टू कैपिटल अकाउंट. हाउ मच इट इज? 700. सो 700 एंड 700. चलो देन नेक्स्ट. issued a check to Mallika distributors after deducting an allowance of rupees 100 to settle the account. मल्लिका डिस्ट्रीब्यूटर को हमने सेटल कर दिया अकाउंट, एक चेक बना के 100 रुपये कट करके. 100 रुपये अलाउंसेस यानी 100 रुपये का डिडक्शन यानी 100 रुपये का डिस्काउंट हमने ले लिया और हमने उसको बाकी का चेक इशू कर दिया, यानी कि बाकी के अमाउंट पे कर दी. अब एक अच्छे से ध्यान से देखना, मल्लिका डिस्ट्रीब्यूटर्स कहाँ पे इन्वॉल्व है. जस्ट चेक इट आउट वेयर इज इट इन्वॉल्व. एक तो ये रहा परचेस्ड फ्रॉम मल्लिका डिस्ट्रीब्यूटर्स एट 10% डिस्काउंट. देन 4th वाले ट्रांजेक्शन में है एंड 7th वाले ट्रांजेक्शन में है. करेक्ट. नाउ लेट्स लुक एट द ट्रांजेक्शन्स. यहाँ पे देखे हमने वर्किंग तो करी होगी 4th और 7th दोनों की. सो ये रहा 4th येस. 27,000 वी आर सपोज टू पे टू मल्लिका डिस्ट्रीब्यूटर्स, जिसमें से 7th ट्रांजेक्शन में हमने उसको कितना रिटर्न करा है भाई? 500 का रिटर्न कर दिया. सो 27,000 में से 500 का तो रिटर्न मैंने कर दिया ऑलरेडी. नाउ आई एम सपोज टू पे कितना? 26,500, जिसमें भी 100 रुपये मैंने डिस्काउंट ले लिया. सो माई एंट्री ओवर हियर वुड बी मल्लिका डिस्ट्रीब्यूटर्स अकाउंट डेबिट $26,500 टू बैंक अकाउंट. मैंने चेक इशू करा है 26,400 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट. देखो 100 रुपीज़ काट के बेचा, आई मीन दिए हैं पैसे. सो 100 रुपीज़ मैंने डिस्काउंट रिसीव करा, ऐसा मान के चलेंगे. करेक्ट. आई होप इट इज़ कम्प्लीटली ऑल राइट, कम्प्लीटली क्लियर. करेक्ट. चलो देन शेफाली सेटल द अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग एन अलाउंस ऑफ 75. अब शेफाली ने भी अकाउंट सेटल कर दिया 75 रुपीज़ का अलाउंस कट करके. अब शेफाली की बात करें, शेफाली को देखे तो उसका क्या सीन था. देखो यहाँ पे शेफाली के साथ हमने कब ट्रांजेक्शन करा है, ये रहा 8th वाली डेट पे हमने शेफाली के साथ ट्रांजेक्शन करा है. देन दूसरी कोई डेट, यस 14th डेट पे भी ट्रांजेक्शन हुआ है. लेट्स लुक एट द एंट्री नाउ. 8th और 14th दोनों की. 8th में शेफाली के पास से कितने लेने बाकी थे? 11,250, राइट. जिसमें से उसने रिटर्न कितने करे? कुछ ये रहे 675 रिटर्न कर दिए. 11,250 उसके पास से लेने बाकी है, जिसमें से उसने मेरे को 675 क्या किए हैं? रिटर्न करे हैं. करेक्ट. सो हियर 11,250 minus 675 comes to 10,575. जो 10,575 उसने मुझे दे दिए, 75 कट करके वो भी. सो हियर और कैश दिया है कि चेक दिया है? लेट्स सी. नहीं, उसमें कुछ लिखा नहीं है तो डेफिनेटली कैश दिया है. कैश अकाउंट डेबिट 10,500. डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 75 to Shefali's account
10,575 कहाँ से आया, इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से ट्रांजेक्शन्स पे शेफाली वॉज इन्वॉल्व. वी नीड टू चेक इट आउट, चेक करता रहना पड़े क्योंकि ये सारे ट्रांजेक्शन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है. सो वी नीड टू चेक इट आउट, राइट. चलो देन नेक्स्ट. Saumil gave cash of ₹5,000 and check of remaining amount to settle the account. अब Saumil का देखे क्या सीन है, Saumil कहाँ पे इन्वॉल्व था. लेट्स सी. Saumil के पास से हमने Saumil को कितना हमने सेल करा था. लेट्स सी दैट. ये रहा 10th वाले ट्रांजेक्शन में Saumil इज इन्वॉल्व एंड नॉट एनी अदर ट्रांजेक्शन. ओके फाइन. चलो तो लेट्स सी 10th वाले ट्रांजेक्शन में Saumil का क्या सीन है भाई. ये रहा. Saumil के पास से 23,400 लेने हैं, उसमें से उसने 5,000 का कैश दिया और बाकी का उसने चेक दे दिया. इफ़ यू कैन सी ओवर हियर लिखा ही गया है 26 में Saumil गेव द कैश ऑफ ₹5,000 एंड चेक ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट 23,000 कितने लेने थे उसके पास से. कहाँ गया Saumil. अरे बाप रे, वेट अ मिनट. ये रहा. Saumil's अकाउंट डेबिट टू सेल्स 23,400 लेने थे, राइट. सो हियर 23,400 उसके पास से लेने थे और 25th डेट को ही इज पेइंग, राइट. तो लेट्स चेक इट आउट. मुझे ख्याल है तब तक ऐसा कुछ था कि अगर 10 दिन में पैसे दे देना तो हम उसको डिस्काउंट देने वाले थे. लेट्स चेक इट आउट. Saumil वाला ट्रांजेक्शन कहाँ गया. यस 10th डेट पे बोला था सोल्ड गुड्स ऑफ 20,000 आफ्टर एडिंग 30% प्रॉफिट. Saumil एट 10% ट्रेड डिस्काउंट 10% कैश डिस्काउंट इफ द पेमेंट इज मेड विद इन 10 days. अगर आप देखें यहाँ पे ध्यान से तो Saumil कब पेमेंट कर रहा है, व्हेन इज ही पेइंग. उसमें बीच में कहीं पे उसने पेमेंट नहीं करा है. लेट मी जस्ट चेक इट आउट. ना गलती नहीं हो जानी चाहिए. सो वी जस्ट नीड टू चेक इट आउट. ये रहा ना, समथिंग इज मिसिंग मुझे लगा ही. 19th date, if you can see, received a check on for half of the amount from Saumil, allowed cash discount to him. Even though they would have not said that allowed cash discount to him, हमें पता चलना ही था क्योंकि 10th date पे हमने सेल करा है और 19th पे he is paying us the half amount, right. तो 23,500 जो उसके 400 जो उसके पास से लेने थे उसका आधा यानी 11,700 he is paying to us, right. So यहाँ पे ध्यान चाहिए मुझे completely. 19th नंबर का ट्रांजेक्शन है ये विच आई नीड टू मैनेज समवेयर इन बिटवीन. येस ओवर हियर आई कैन मैनेज. जस्ट अ मिनट. हियर आई कैन मैनेज. आई हैव स्पेस. अगर आप मेरे साथ साथ ही लिखने का काम कर रहे थे तो दैट कुड हैव बीन अ ट्रबल फॉर यू. 18-19 कुछ नॉन इकोनॉमिक थे जो मैंने यहाँ पे लिख लिए और यहाँ पे 19th डेट पे ही Saumil के पास से लेने थे कितने 23,400 जिसमें से वो मेरे को आधी अमाउंट का चेक दे रहा है, राइट. सो माई एंट्री ओवर हियर वुड बी 23,400 डिवाइड बाई 2 दैट इज 11,700. उसका भी 10% हम डिस्काउंट दे रहे हैं उसको. सो माई एंट्री वुड बी लाइक दिस. बैंक अकाउंट डेबिट 11,700. Discount allowed account debit, sorry, it will be 10,530. Discount allowed account debit 1170 to Saumil's account as Saumil is paying us the half amount 11,700. करेक्ट. 11,700 का मैंने उसको 10% डिस्काउंट दिया. इवन तो वहाँ पे क्लियरली नहीं बोलते तो भी मुझे पता है कि हमें डिस्काउंट लिखना ही होता. करेक्ट. अब देखना Saumil के पास से लेने थे कितने यहाँ पे 23,400. इफ़ यू कैन सी ओवर हियर जस्ट अ मोमेंट. यस 23,400 जिसमें से Saumil ने मेरे को पे कितने कर दिए 11,700. सो अब कितने लेने बनते हैं 11,700 ओनली. सो ओवर हियर माई एंट्री वुड बी लाइक दिस. बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट to Saumil's account
11,700 जो था 11,700 उसमें से कुछ वो 5,000 मुझे कैश दे रहा है और बाकी का 6,700 ही इज़ डूइंग व्हाट, ही इज़ गिविंग मी द check. Is it done? Is it completely clear? It was also a good transaction. Then next आगे बढ़े. Goods of rupees 3,000 were destroyed by fire for which the insurance company accepted a claim of rupees 2,000, received 200 on sale of goods destroyed by fire. चलो let's do it. 3,000 की गुड्स है, इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट किया कितना, 2,000, जो बाकी का बचा उसमें से मुझे कैश मिला 200 का, तो कहना इसे एक्चुअल लॉस हुआ कितने का, 800 का. ये मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है. सो माय एंट्री ओवर हियर वुड बी इंश्योरेंस कंपनीज अकाउंट डेबिट 2,000, कैश अकाउंट डेबिट 200, loss by fire account debit 800. 2 goods are going out other than sales, so purchase account 3,000. completely clear. चलो then let's move ahead. Goods of rupees 600 got wet in rain and sale of which received rupees 200. 600 के गुड्स गए, उसमें से 200 तो रिकवर कर दिए, तो क्या नहीं से लॉस तो मेरे को 400 का ही हुआ. सो माई एंट्री वुड बी कैश अकाउंट डेबिट 200, लॉस बाय रेन अकाउंट डेबिट 400. 2 purchase account goods are going out other than sales 600. completely clear. चलो then goods of 300 were stolen away, चोरी हो गए तो लॉस हो गया पूरा. so my entry would be loss by theft account debit 2 purchase account, how much it was, 300 and 300. easy, completely fine. चलो फिर आगे बढ़े. पेड सैलरी ऑफ 2,000 टू अकाउंटेंट एंड वेजेस ऑफ 500 टू परमानेंट वर्कर. इन शॉर्ट सैलरी एंड वेजेस हमने पे करे हैं, करेक्ट. सो माई एंट्री वुड बी सैलरी अकाउंट डेबिट 2,000, वेजेस अकाउंट डेबिट 500, टू कैश अकाउंट 2,500. completely clear. चलो फिर पेड टेलीफोन बिल ऑफ 200 एंड लाइट बिल ऑफ 300 इन कैश. पे करा है टेलीफोन बिल एंड लाइट बिल. सो माई एंट्री वुड बी टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 2, electricity expense account debit 2, cash account, how much it is, 200 and 300. so 200 and 300 total would be 500. easy. चलो फिर पेड इंटरेस्ट ऑन सरोज बैंस लोन फॉर अ मंथ. सरोज बैंक की लोन हमने ली थी फर्स्ट डेट पे, देखो यहाँ पे ध्यान से 12% सरोज बैंस लोन एट 40,000, जिसके ऊपर हमने 1 महीने का अभी इंटरेस्ट भरा है. तो कैसे करेंगे, लेट्स सी. 40,000 इंटू 12%, 4,800, करेक्ट. फॉर 12 months it is 4,800. then how much for 1 month? Is it clear? So it will be 400. otherwise you may use this wala formula also, I is equals to PRN upon 100. if you whatever suits you, whatever you find comfortable, you may try. so my entry would be interest account debit, just a minute,
interest account debit to cash account 400 and 400. Correct. चलो then next, sold goods of cost price rupees 5000 for cash as to earn 20% profit on sales price. Now this is also a very good transaction. हमने 5000 के गुड्स कैश में बेचे सो एज टू अर्न 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स प्राइस. अब समझना अच्छे से, 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स प्राइस बोला गया है. ऑन के बाद आपको कौन सा वर्ड दिख रहा है? ऑन के बाद सेल्स प्राइस दिख रहा है. ऑन के बाद जो भी वर्ड हो उसको हमें 100 अज्यूम करना है. ध्यान यहाँ पे अच्छे से. सेल्स प्राइस अगर मेरी 100 है तो मुझे ऐसा बोला गया है टू ऑन प्रॉफिट ऑफ 20%, राइट. सो कैन आई से प्रॉफिट 20 होगा. करेक्ट. अब अच्छे से ध्यान, कैन आई से हम ऐसा कुछ लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स प्राइस. करेक्ट. अगर मेरी सेल्स प्राइस 100 है, मेरा प्रॉफिट 20 होगा, तो कहना इसे कॉस्ट प्राइस वुड बी 80. अब ध्यान से यहाँ देखना क्वेश्चन में, सोल्ड गुड्स ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ रुपीज़ 5000 ऐसा बोला गया है क्वेश्चन में. कॉस्ट प्राइस ऑफ रुपीज़ 5000, इफ यू कैन सी क्लियरली, कॉस्ट प्राइस ऑफ रुपीज़ 5000, राइट. तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसा लिखूंगी, 80 पे 5000 तो 100 पे कितना, 100 into 5000 divided by 80 comes to 6250. Correct. Very good transaction it is. So it will be, the entry will be cash account debit to sales account 6250. This is a very good transaction. You should refer to it very often. और हम ऐसे आगे के सम्स में भी बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स करने वाले हैं. आई होप यू ऑल आर क्लियर विथ वट एवर वी हैव स्टडीड इन टूडेज सेशन. थैंक यू.